So students, welcome back once again. In the previous topic, we have completed the structure of plastid, that is chloroplast, chromoplast and leucoplast. हम उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं. द लिस्ट वाज देयर कि आफ्टर प्लास्टिड वी हैव टू गो विद द माइटोकॉन्ड्रिया. सो टुडे वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियन आर द सिमिलर वर्ड. सिंगुलर वर्ड के लिए अपन माइटोकॉन्ड्रियन यूज़ करते हैं एंड द प्लूरल वर्ड इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोज ग्रीक वर्ड है, दैट इज थ्रेड. Chondrian granules, so thread like granules, cylindrical granules present in the cell, that is called as mitochondria. बहुत important structure है cell के लिए. This is actually known for producing the energy inside the cell. Whatever the metabolic processes are there, all these metabolic processes are getting energy from the mitochondria itself. Okay, so one by one, each and every point we are just going to understand. So here just as per the Greek name only, the Latin name only, the mitochondria is cylindrical or sausage shaped structure that is present in the cell cytoplasm, and this is also a structure which is bounded by the two membrane. हमने कल देखा था chloroplast was there, that is also bounded by the two membrane, the double membrane bound structure, and here also we are just observing the mitochondria is also a double membrane bound structure. So mitochondria is cylindrical or sausage shaped double membrane bound structure present in the cell cytoplasm. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा नीट में पूछा जाता है कि वेयर डू वी फाउंड दैट पर्टिकुलर आर्गन. सो रिमेंबर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए और किसी भी आर्गेनेल के लिए पूछा जाए तो आपका आंसर यही होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉट ओनली फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर एनी ऑफ द आर्गेनेल यू हैव टू गो विद द सेम कॉन्सेप्ट. ऑक्यूरेंस की बात करें, so all the cell organelles are absent in the prokaryotes and mature mammalian RBC. रट लेना है आपको whenever it is being asked कि this organelle is absent in which structure. So all the cell organelles are absent in prokaryotes and mature mammalian RBC. आप पहले देख चुके हैं mature mammalian RBC में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, only cell membrane and cytoplasm is there. Okay, so occurrence का मतलब क्या हुआ कि किस जगह पे मिलेगा, किन सेल्स में मिलेगा. So this is present only in mammalian cells, mature mammalian cells, mature eukaryotic cell, but absent this is present in all the cells, all the eukaryotic cell, but absent in the prokaryotic cell and mature mammalian RBC. और यही क्वेश्चन है, repeated question in many of the examinations. So absent in prokaryotic cell, mature mammalian RBC and in anaerobic cell, because mitochondria is the site of aerobic respiration. यहाँ पे ये aerobic respiration complete होता है, तो that is why जिन cells में aerobic respiration होता ही नहीं है वहाँ पे mitochondria होता ही नहीं है. या हम ये कहें कि due to the absence of mitochondria the cells cannot perform the aerobic respiration. Okay, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द ट्रांसड्यूसर ऑफ एनर्जी. कई सारे पॉइंट है कि करके अपन सारे पॉइंट देखेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसड्यूसर ऑफ एनर्जी. यूजुअली ये बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसड्यूसर ऑफ एनर्जी, नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी. एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करता, इंस्टेड इट इज गोइंग टू ट्रांसड्यूस द एनर्जी, ट्रांसफॉर्म द एनर्जी. ट्रांसडक्शन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. माय डियर चाइल्ड, आप जानते हैं एज पर द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, energy neither be created nor be destroyed, it is only can be changed from one form to the another form. So mitochondria is transducer of energy means what? It is not going to produce the energy, instead it is going to change the energy from one form to the another form. कैसे? Whatever the energy is being present in form of the potential energy among the biomolecules, among the nutrients, that energy is being converted in form of the working force, in form of the kinetic energy by the mitochondria. So mitochondria का काम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना. दैट इज वाई दिस इज व्हाट ट्रांसड्यूसर, नॉट द प्रोड्यूसर. इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, इंस्टेड दैट इज द ट्रांसड्यूसर ऑफ एनर्जी, सिंस इट इज कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है. वन बाय वन वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व. द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं आपने देख ही लिया यहाँ पे, बिकॉज it is going to convert the potential energy into the kinetic energy. ATP mill in the cell, because ATP production is the part of, is the function, is the major function of mitochondria, तो इसलिए ATP mill in the cell बोला जाता है. कॉन्ड्रियोसोम ग्रैन्यूल्स के लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रैन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर है. तो कॉन्ड्रिन का मतलब आपने पहले ही देखा है, ग्रैन्यूल. सो ग्रैन्यूल लाइक बॉडीज. कॉन्ड्रियोप्लास्ट ग्रैन्यूल्स हैं जो लिविंग सेल्स में है. कल आपने प्लास्ट का मतलब देखा था, लिविंग सेल. प्लास्टोसोम्स लिविंग बॉडीज़ हैं. मायोकॉन्ड्रिया मसल्स में मिलने वाले हैं.
सार्कोसोम्स मसल्स में मिलने वाले हैं। सेल विद इन सेल, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं, इनके पास खुद का राइबोसोम, इनके पास खुद का डीएनए है, खुद की एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो इसलिए दे कैन सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर स्ट्रक्चर। So mitochondria is considered as the most busy structure and the active cell organelle in the cell, क्योंकि ये लगातार एनर्जी का कन्वर्जन करता रहता है, लगातार एटीपी का प्रोडक्शन करता रहता है, लगातार इसके पास में माल आता रहता है और उसको प्रोसेस करता रहता है टू प्रोड्यूस आउट द एटीपी फ्रॉम द मटेरियल्स। ओके, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। व्हाई इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल? बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए, it is having its own ribosome, it is having own energy resource। that means कि ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इटसेल्फ देयर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, इसीलिए इसको सेल विद इन सेल भी कहा गया था। लेट अस सी सम ऑफ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। The mitochondria was first discovered by the Kolliker in 1880 in the striated muscles of the insect। ये flight muscles में मिल रहे थे, voluntary muscles हैं, तो flight muscles having the more amount required the more amount of energy, that is why the easily they can be observed there in the flight muscles of the insect। So that was first time observed by the Kolliker in 1880 in the striated muscles of the insect। इसके बाद फ्लेमिंग ने 1882 में इसके लिए एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ फाइला, क्योंकि फिलामेंटस अपीयरेंस था, दैट माइटोस थ्रेड लाइक देयर सिलेंड्रिकल अपीयरेंस इज देयर, दैट इज़ वाई इट इज़ रिफर्ड एज द फाइला। एल्टमैन ने 1894 में बायोप्लास्ट नाम दिया। अब कुछ एक रिसोर्सेस में ये कहा जाता है कि द एल्टमैन इज एसोसिएटेड विद द एक्चुअल डिस्कवरी और एक्चुअल डिस्कवरर ऑफ द mitochondria, while some of the resources are saying that Fleming and Altman has combinedly given credit for the research or combinedly given credit for the discovery or actual discovery of the mitochondria। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ एक बुक्स में, कुछ एक रेफरेंसेस में कहा गया है कि Altman has the actual inventor, actual discoverer of the mitochondria, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेस में ये भी मिला हुआ है कि फ्लेमिंग और अल्टमान दोनों को कंबाइंडली क्रेडिट दिया जाता है टू द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अगर ऑप्शन में केवल अल्टमान है तो यू हैव टू गो विद द अल्टमान, इफ द ऑप्शन इज हैविंग ओनली फ्लेमिंग तो यू हैव टू गो विद द फ्लेमिंग। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए और बी दोनों पूछा गया, फ्लेमिंग और अल्टमान दोनों पूछा गया, तो आपको उस तरीके से सिलेक्ट आउट करना होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन वॉट एवर इज आस्क्ड। कैसे ऑप्शन दिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाद में बेंडन ने 1897 में इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का यूज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का यूज़ किया था बेंडन ने। प्लांट सेल में सबसे पहले 1904 में खोजा था, मीवीज ने 1904 में, मीवीज हैज़ रिपोर्टेड देम इन द प्लांट सेल। द साइज, नॉर्मल साइज, द डायमीटर इज 0.2 to 0.4 माइक्रॉन, सॉरी 0.2 to 1.0 माइक्रॉन। एवरेज साइज होता है 0.5 माइक्रॉन। लेंथ होता है 0.0 to 4.1 माइक्रॉन। सेब हम देख चुके हैं, फिलामेंटस होगा, सिलेंड्रिकल होगा, थ्रेड लाइक होगा, या तो सॉसेज सेप। सॉसेज का मतलब होता है प्लेट सेप, तस्तरी के जैसा होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग कि जब भी नंबर की बात करें, साइज की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रेटली वेरिएबल इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, बिकॉज the size of mitochondria and the number of mitochondria in a cell is based on the metabolic activity of the cell। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, एंड टू accomplish that much demand of energy the mitochondria will have that much larger in size and that much larger in the number। मतलब सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं the mitochondrial activity, sorry, the cellular activity defines or demands the extra mitochondria, excess mitochondria thereon। So moving on to the concept, देखिए साइज एंड नंबर डिपेंड्स, साइज एंड नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। मोर एक्टिव सेल विल हैव द बिगर एंड द मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर की बात कर रहे थे, तो हायर द मेटाबॉलिज्म हायर द नंबर। जितनी ज़्यादा तेज मेटाबॉलिज्म होगी, जो जितनी ज़्यादा एक्टिव मेटाबॉलिक सेल्स होंगी, उनमें उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। एवरेज नंबर देखा जाता है 200 to 300 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। The minimum number is being reported in the algae, that is Microasterias, only one mitochondria present in a cell. The sea urchin is having 1,40,000 to 1,50,000 mitochondria per cell.
the flight muscles where it has been reported for the first time, that is 5 lakhs mitochondria per cell. In a cell 5 lakhs mitochondria, because that cell demand great amount of energy. This is what, सो द प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के कंपैरिजन की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. अगर पूछा जाता है क्यों, तो प्लांट सेल में टू प्रोड्यूस द एनर्जी, टू प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट, दे आर हैविंग देयर ओन किचन दैट इज कॉल्ड एज chloroplast. So due to the presence of chloroplast, the plant cells are having relatively less number of mitochondria or less active mitochondria. तो ये क्लियर हो गया किससे रिलेटेड है, इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से. एक से लेके बहुत सारी हो सकती है, जितना एक्टिव सेल होगी उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जितनी कम एक्टिव होगी उतने कम होंगे. मैक्सिमम हमने देखा इंसेक्ट की फ्लाइट मसल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, मिनिमम माइक्रोस्टेरियस में देखा हुआ अपन ने. और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं किसी भी सेल में, कंबाइनली ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोम. ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया कंबाइनली कॉल्ड एज द कॉन्ड्रियोम इन अ सेल. ठीक है, बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट एग्जामिनेशन. हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा था, प्लास्टिड्स को देखा था. द प्लास्टिड्स आर लार्ज इनफ, दे कैन ईजिली विजुअलाइज अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं. दे आर सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर आफ्टर द न्यूक्लियस. बट माइटोकॉन्ड्रियाज आर नॉट सो बिग, दे आर नॉट टू बिग. So to visualize them in the microscope, to visualize in the cell, we need to stain them properly so that they can be easily visualized. तो उसके लिए स्टैनिंग की जरूरत होगी. तो स्टैनिंग यहाँ पे बहुत खास हो जाती है. तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन. किन कलर से, किन पर्टिकुलर स्टेन से यूज किया जाता है, किन पर्टिकुलर स्टेन से स्टेन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. सो द स्टेन्स दैट आर यूज फॉर द स्टैनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज क्रिस्टल वायलेट और एलिजारिन और जेनस ग्रीन बी. 3 स्टेन यूज करते हैं, या तो क्रिस्टल वायलेट का यूज करेंगे, या एलिजारिन का यूज करेंगे, या जेनस ग्रीन बी का यूज करेंगे. सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जेनस ग्रीन बी. सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेन जो यूज किया जाता है फॉर स्टेनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड एज जेनस ग्रीन बी. सो इट इज क्लियर, 3 तरीके के स्टेन का यूज किया जा सकता है, इधर क्रिस्टल वायलेट और एलिजारिन और जेनस ग्रीन बी. और जेनस ग्रीन बी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेन वी आर यूजिंग फॉर स्टेनिंग द mitochondria. So moving on to the next point about the mitochondria. So next one is the structure of mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया की शुरुआत में हम देख चुके हैं, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. 2 मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर है. और स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जहाँ भी हमने देखा था कि 2 मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, तो 2 पार्ट हो जाएंगे. 1 पार्ट इज मेम्ब्रेन एंड अदर पार्ट इज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन. तो पहला पार्ट मेम्ब्रेन बनता है और दूसरा पार्ट चैम्बर्स का बनता है. तो 1 by 1 वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो 2 मेम्ब्रेन है. तो 1 इज कॉल्ड एज द आउटर मेम्ब्रेन, अनदर वन विल बी कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. 2 मेम्ब्रेन्स है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हो गई, 2 मेम्ब्रेन है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हो गई, तो 2 मेम्ब्रेन है. तो आउटर वन विल बी कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, इनर वन विल बी कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन. और दोनों के दोनों मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है. फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एज पर द रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ऑल द बायो मेम्ब्रेन्स आर लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. इसमें दोनों मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में स्ट्रक्चरली ड्यू टू द ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. क्या डिफरेंस होता है वो अपन समझ लेते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन्स हैव मोर फॉस्फोलिपिड्स. और कौन सा फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है इसमें? फॉस्फेटिडिल कोलिन. Which phospholipid is more there? Phosphatidylcholine is more there in outer membrane. And the cholesterol, outer membrane is having more phospholipid, that is phosphatidylcholine and cholesterol as compared to the inner membrane. Inner membrane के comparison में the outer membrane is having more amount of the phospholipid. Which phospholipid? Phosphatidylcholine and the cholesterol. And the outer membrane is completely smooth and forming the external boundary of the mitochondria. बाहर की तरफ पूरी की पूरी पेरिफेरल बाउंड्री बनाता है, एक सीमलेस बाउंड्री बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये सेपरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द अदर सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, सो दिस इज गोइंग टू मेक द बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं. सो केमिकली द आउटर मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन. उसमें क्या होगा? 40% लिपिड होगा और 60% प्रोटीन होगा. और लिपिड के ज़्यादा होने के कारण दिस इज परमिएबल, दिस इज ट्रीटेड एज परमिएबल फॉर द वाटर, सुगर एंड मैनी ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Outer membrane is permeable because of more lipid content in it.
द आउटर मेम्ब्रेन इज हैविंग 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन। ज़्यादा लिपिड होने के कारण ये परमिएबल होती है किसके लिए, वाटर के लिए, शुगर के लिए और मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। कंपैरेटिवली द इनर मेम्ब्रेन इज हैविंग ओनली 20% लिपिड्स एंड 80% प्रोटीन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, ओनली 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड। और जो लिपिड है ये बहुत स्पेसिफिक है, दैट इज कार्डियोलिपिन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में अंतर समझ में आ गया। आउटर मेम्ब्रेन 40% लिपिड और यहाँ पे 20% लिपिड, यहाँ 60% प्रोटीन, यहाँ 80% प्रोटीन। तो 60% प्रोटीन 40% लिपिड के कारण वो परमिएबल होगी और 20% लिपिड के कारण ये सेमी परमिएबल होगी। दैट इज गोइंग टू चेक आउट द एंट्री ऑफ ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल, नॉट द solid molecules, not the solids, only permit the movement of solvent. Okay, जैसा हमने देखा था कि द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और द आउटर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली स्मूथ, बट हियर इन केस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट स्मूथ, दैट इज कंटिन्यूसली इनफोल्डेड, इन्वेजिनेट होती है लगातार इनर चैम्बर की तरफ, इनर कंपार्टमेंट की तरफ। तो वो अपन और आगे डिटेल में देखते हैं। तो अभी तक आपने ये देख लिया था, मेम्ब्रेन इज अ बाइलेयर्ड, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर वन इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में गैप होगा वो आप यूजुअली जानते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा फास्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। कौन सा फास्फोलिपिड ज़्यादा होगा, फास्फेटिडिल, कॉलिन, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। आउटर मेम्ब्रेन में 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन, इस कारण से परमिएबल होती है फॉर द वाटर, शुगर एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज हैविंग ओनली 20% ऑफ लिपिड, हैंस इट इज semi permeable and more amount of protein is present here. Moving on to the next concept, that is the chambers. The next structure of the mitochondria is the chamber. Bilayered structure होने के कारण since the mitochondria is covered externally by the two layered membrane, तो two layered membranes के कारण यहाँ पे दो chambers बन जाते हैं. Two chambers are there. The first chamber, that is the outer chamber, is called as पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर. अंदर के चैम्बर से बाहर की तरफ मिलने वाला चैम्बर कहलाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर. दैट पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर इज आल्सो कॉल्ड एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर. ये किसके बीच बनेगा, इन बिटवीन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में मिलने वाला चैम्बर है. सो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. The size or the area is around 60 to 80 angstrom in the diameter. और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसके पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं दैट इज यूजफुल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स. सो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर का मतलब क्लियर हुआ. यहाँ पे भी एक लिक्विड भरा होगा दैट इज कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड present between the outer and inner membrane. The size is 60 to 80 angstrom, and what is use of that, it is having some of the enzyme which is useful for the oxidation of the fat. The inner chamber, the second one, ये बड़ा chamber होता है. The larger chamber of the mitochondria is the inner one, that is lying inside the inner mitochondrial membrane. So inner chamber बड़ा chamber होगा जो inner membrane के अंदर की तरफ होगा. It is filled with the homogeneous matrix that is called as mitochondrial matrix. ये हम हमेशा जानते हैं कि जो भी गैप बनेगा, जो भी chambers बनेंगे inside the सेल ऑर्गेनेल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, वो हमेशा होमोजेनस मैट्रिक्स से भरे होंगे. और दैट होमोजेनस मैट्रिक्स बिकॉज इट इज फिल्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सो दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. दैट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज सर्टेन एंजाइम्स फॉर द क्रेब्स साइकिल. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रेब्स साइकिल इज द फाइनल फेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. यहीं पे फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और मैक्सिमम एटीपी का प्रोडक्शन होता है. तो सारे के सारे एंजाइम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. ये आपको आगे पढ़ना पड़ेगा व्हेन यू विल बी देयर इन द प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. क्रेब्स साइकिल पढ़ने में आता है. तो रिमेंबर द क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. क्यों होती है? क्योंकि सारे एंजाइम फॉर द क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट देयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. हम पहले ही देख चुके हैं. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है सिंस इट इज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम, बट द साइज ऑफ राइबोसोम इज 70s. द DNA is itself present here in, that is double stranded circular DNA. अब खास बात यह है इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA की, दैट इज GC रिच DNA. GC रिच DNA मतलब इसमें एडिनिन और थाइमिन के कंपैरिजन में G और C, गुआनिन और साइटोसिन ज़्यादा होता है. सो दैट DNA ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज GC रिच इन नेचर, इंक्लूडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द RNA मॉलिक्यूल. कुछ बाइवेलेंट आयन जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन भी रहेंगे. तो ये इसका कंपोजिशन होता है. मीन्स व्हाट,
The matrix of mitochondria is filled with the enzymes for the Krebs cycle, ribosomes, the DNA molecule that is GC rich, RNA molecule in some extent, bivalent ion, magnesium ion and the calcium ion. ये सारे केमिकल्स, सारा कंपोजिशन है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एक और खास बात है ध्यान रखने की है कि यदि बाहर की मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर का मतलब द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, दैट इज इनर चैम्बर इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट. यदि बाहर की मेम्ब्रेन को हटा दें तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? आपकी माइटोप्लास्ट कहलाएगी. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आता है सी फेस और एम फेस. सी फेस और एम फेस दो पोलर रीजन होते हैं, दो रीजन बनते हैं, दो पोलैरिटी बनती हैं ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दो फेस, दो सरफेसेस दिखाई देते हैं. दो सरफेसेस आर कॉल्ड एज सी फेस एंड एम फेस. रिमेंबर, नॉट एन आउटर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब सी को याद रखने के लिए आपको याद रखना है सी फॉर साइटोप्लाज्म और एम को याद रखने के लिए याद रखना है एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया या मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी को याद रखेंगे अपन सी फॉर साइटोप्लाज्म, एम को याद रखेंगे एम फॉर मैट्रिक्स. तो सी फॉर साइटोप्लाज्म मतलब द सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फेसिंग टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ वाला सरफेस कहलाएगा आपका सी फेस. while the surface of inner membrane which is facing toward the matrix that is called as M phase. So external surface of the inner membrane that is faced toward the cytoplasm is C phase. Inner surface of the mitochondrial membrane or inner mitochondrial membrane that face toward the matrix is called as M phase. क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. हमने बताया था, वी हैव डिस्कस्ड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इरेगुलर, दैट इज कंटिन्यूसली मेकिंग द इनफोल्डेड स्ट्रक्चर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर. अंदर की तरफ ये लगातार इनफोल्डिंग के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, इरेगुलर प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करती है. दैट इरेगुलर प्रोजेक्शन, कंटिन्यूस इनफोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज Christie. Infolding of inner mitochondrial membrane is Christie. In case of the plant, that Christie is the larger in size and in form of the tubular structure. So that is why this is also called as the tubuli. तो plant cells में इसको अपन क्या कहते हैं? tubuli या तो microvilli. Are you getting my point? Christie का मतलब क्या होगा? Infolding of the inner mitochondrial membrane inside the mitochondrial chamber. और plants के केस में ये tube like होती है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? tubuli या तो microvilli. डियर स्टूडेंट, ये क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर होती है जिनके ऊपर एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस होता है, ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी होता है. तो डेफिनेटली द सेल विच इज हैविंग मोर एक्टिव, दे विल हैव द लार्जर साइज ऑफ द क्रिस्टी एंड मोर नंबर ऑफ द क्रिस्टी. और द सेल्स जिनमें एक्टिविटी कम होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होंगी, उनमें लेस नंबर ऑफ क्रिस्टी विल बी देयर. Small size of Christie will be there. So number and size of the Christie is depending upon the size of mitochondria and metabolic activity of cell. किस तरीके की सेल है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरीके की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टी एंड द साइज ऑफ क्रिस्टी. यदि ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा बड़े होंगे और ज़्यादा नंबर में होंगे, कम एक्टिव है तो लेस एंड लेस इन स्मॉल इन साइज. इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कुछ स्पेसिफिक नॉब शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं. दैट नॉब शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स आर द बेसिक पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी आर ट्यूबुली और माइक्रोविलाई. Some basic knob-like structures are present, knob-like particles are present. That particles are called as oxysomes or elementary particles. इन्हीं को F1 particles भी कहते हैं. इनको रिपोर्ट किया था फर्नांडेज एंड मोरन ने, इसलिए इसको फर्नांडेज एंड मोरन सब यूनिट भी कहते हैं. ये एक्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है. सो F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सो दे आर द रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर द नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी. क्रिस्टी के ऊपर अटैच होते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, एंड दे आर द एक्चुअल साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस. So they have been reported by the Fernandez and Moran, so that is why they are also called as Fernandez and Moran subunit. Remember on the M phase, M phase का मतलब matrix की तरफ. So on the M phase of the inner membrane, the racket shaped microparticles are present that are called as F1 particle or oxysome or the elementary particle.
ये क्लियर हो गया। F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ है, एम फेस पे है, रैकेट शेप्ड है या नॉब शेप्ड कहा जाता है, माइक्रो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल हैं और ये सभी एक दूसरे से एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर इज द 100 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों, ये जितने भी F1 पार्टिकल हैं या ऑक्सीसोम है या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे एक दूसरे से पड़े हुए हैं। इनका साइज होता है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। Size of oxysome is 70 to 100 angstrom. The distance between two F1 particle or oxysome is 100 angstrom. दोनों continuously एक regular distance पे हैं, that is of 100 angstrom. Size is 70 to 100 angstrom. The distance between the two F1 particle is 100 angstrom from each other. F1 पार्टिकल का काम क्या है अगर ये पूछा जाता है तो F1 पार्टिकल इज़ द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ETC यहाँ पे चलता है। ETC का काम होता है द फॉर्मेशन ऑफ ATP थ्रू द ऑक्सीडेशन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ATP थ्रू द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये प्रोसेस भी अपन जब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। सो F1 पार्टिकल आर द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस को या इन पार्टिकल्स की प्रेजेंस को, इस नेचर ऑफ द F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम को रिपोर्ट किया था पार्सन ने। इसीलिए पार्सन ने इन F1 पार्टिकल को ETP नाम भी दिया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। पार्सन ने इनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल सिंस दिस पार्टिकल्स हैज़ अंडरगोन इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो नाउ ये क्लियर हो गया। ऑक्सीसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ETP क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। F1 पार्टिकल अभी आगे आना बाकी है। एलिमेंट्री पार्टिकल बिकॉज दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर विच द माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड। अब अगर हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो द एंटायर ऑक्सीसोम आर elementary particles are ETP or oxysome is being divided into 3 part. The first part is the base. ये वो पार्ट होता है जिससे ये इनर मेम्ब्रेन में चिपका होता है, दैट इज आल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल। बीच का हिस्सा दैट इज बीइंग इन बिटवीन द हेड एंड बेस इज कॉल्ड एज स्टॉक, F5 से F6। इसका साइज होता है 35 to 50 एंगस्ट्रॉम। द थर्ड वन, द टॉप वन, हेड या हेड को ही एक्चुअली अपन कहते हैं F1 पार्टिकल। तो बेस, स्टॉक, हेड 3 पार्ट बनते हैं ऑक्सीसोम के। F0 बेस को, F5 F6 स्टॉक को, F1 हेड को कहा जाता है। हेड का साइज होता है 70 एंगस्ट्रॉम। हेड ऑफ द ऑक्सीसोम इज द एक्चुअल साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि क्यों ऐसा होता है कि ओनली द हेड ऑफ F1 पार्टिकल इज हैविंग और हेड ऑफ ऑक्सीसोम इज हैविंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ATP, नॉट अदर स्ट्रक्चर, नॉट द एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके लिए फिर से ध्यान रखें, द एंजाइम इज रिक्वायर्ड, द एंजाइम फॉर ATP सिंथेसिस, एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज प्रेजेंट ओनली इन द head of oxysome, that means in the F1 particle. So it has the enzyme that is ATPase or ATP synthetase, that is what required for the ATP synthesis. तो इसीलिए ये साइट ऑफ ATP फॉर्मेशन बन जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपको। लेट अस सी द डायग्राम, और डायग्राम से आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अभी तक हमने देखा हुआ है। तो जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम। जैसे हमने बोला था कि 2 मेम्ब्रेन और 2 चैम्बर हैं, तो 2 मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड हो गए, तो दैट वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा होगा यहाँ पे। इनर चैम्बर इज द लार्जर वन, दैट इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर आर द इनर चैम्बर। इसमें भरा हुआ जो लिक्विड होगा दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एंजाइम्स बताए थे, बाइवेलेंट आयंस बताए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने जैसी नहीं, बट 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर एबल टू ऑब्जर्व, दैट इज द सर्कुलर DNA इज प्रेजेंट हियर and the ribosomes are also present here. आउटर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से स्मूथ है, सीम पूरी तरीके से स्मूथ और पेरिफेरल बाउंड्री बनाती है। द इनर मेम्ब्रेन इज हैविंग कंटिन्यूअस इनफोल्डिंग, लगातार इनफोल्डिंग होती है, एंड दैट इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। ये इनफोल्डिंग क्या कहलाएगी, क्रिस्टी, इसको अपन कहेंगे क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर हमने बताया था कुछ बेसिक पार्टिकल्स लगे होते हैं, दैट बेसिक पार्टिकल्स आर रैकेट शेप्ड। तो ये रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स आपके कहलाएंगे F1 पार्टिकल। इनका साइज हमने देखा था
70 to 100 एंगस्ट्रॉम होगा, और इनके बीच में जो गैप होगा दैट इज ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम, एक दूसरे से रेगुलर डिस्टेंस पे होंगे 100 एंगस्ट्रॉम के। इसको थोड़ा सा और बेहतर करके अपन समझते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज देयर, इनर मेम्ब्रेन में दो फेस होते हैं, सी फेस और एम फेस। तो ये बाहर वाला हिस्सा जो होगा इसका सी फेस कहलाएगा, और अंदर वाला हिस्सा होगा एम फेस कहलाएगा। अब इनर मेम्ब्रेन का कंटिन्यूअस इन्वेजिनेशन इन फोल्डिंग इस तरीके से होना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टी। द कंटिन्यूअस इन फोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी में हमने देखा सम ऑफ द बेसिक यूनिट, सम ऑफ द बेसिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दैट बेसिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स, आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आर यूनिट्स ऑफ फर्नांडिस एंड मोरेन। अब ये किस तरफ होते हैं, एम फेस की तरफ होते हैं। तो ये सी फेस बाहर की तरफ हो गया टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, एंड द एम फेस इज टुवर्ड द मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब अपन देख लेते हैं कि ये F1 पार्टिकल जो हमने बोला था F0, F5, F6 एंड F1 क्या होता है। तो अब इस एक पार्टिकल को उठा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो धंसा हुआ हिस्सा होता है जिसके थ्रू दिस इज गोइंग टू अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेस, दैट इज F6। दूसरा हिस्सा that is going to connect head to the base is called as stalk, F5 to F6 particle, 35 से 50 एंगस्ट्रॉम का साइज होगा इसका। the major portion which is the functional portion of the elementary particle or oxisome is called as head, that is called as F1 particle, 70 एंगस्ट्रॉम का साइज होगा। this is the actual site of the oxidative phosphorylation, this is the actual site of ATP synthesis, this is the actual site of formation of ATP। पूछा जाए क्यों, मैंने पहले ही आपको बताया द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस इज अवेलेबल ओनली इन द हेड ऑफ F1 पार्टिकल, दैट इज वाई, एंड द एंजाइम इज ATP सिंथेटेज आर ATPase। Okay, so this is what all about the structure of the mitochondria. I think I made you clear all the things about the structure of mitochondria. After the structure of mitochondria, कुछ पॉइंट है जो हम पहले भी देख चुके हैं। वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज रिपीट इट फर्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं इसके पास में खुद का राइबोसोम है, दैट इज 70S, खुद का DNA है, स्मॉल सर्कुलर DNA, खुद की एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म है द ऑक्सीसोम। इस कारण से ये खुद ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। बट टू गेट द इंफॉर्मेशन इट इज़ आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द nucleus for the particular type of information. Okay, the biogenesis कैसे डेवलप हुआ होगा, ये किस तरीके से बनता है सेल के अंदर। so that is going to generate, that is going to produce once again from the pre-existing mitochondria by the process of binary fission, जैसा हमने प्लास्टिड्स के केस में देखा था। ये कैसे बनता है, pre-existing mitochondria से binary fission के थ्रू बनेगा। किस तरीके से सेल में ओरिजिनेट हुआ होगा, तो ये भी एंडोसिम्बायोटिकली ओरिजिनेट हुआ, किससे, फ्रॉम द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या तो प्रोकैरियोटिक सेल। बायोजेनेसिस किससे होती है, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से, बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ओरिजिन कैसे हुई, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन फ्रॉम द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस, मेनी ऑफ द फंक्शन यू नोज, मेजरली आर मेनली द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इट इज़ वर्किंग एज पावर हाउस, क्योंकि ATP का प्रोडक्शन इसी के पास में होता है। सेंटर ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल सिंस इट इज़ द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ATP प्रोडक्शन। जो कुछ और फंक्शन है जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इट हेल्प्स इन द वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस का मतलब होता है योग फॉर्मेशन, एंड योग इज द कंपोनेंट ऑफ द एग, सो दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द oogenesis। एग फॉर्मेशन के टाइम पे योग का फॉर्मेशन होता है, एंड योग इज वंस अगेन द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जहाँ कहीं भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, सो यू विल हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मिलती हैं स्पर्म के ऊपर इन द मिडिल पीस, दैट इज आल्सो यूजफुल इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। जब स्पर्म मूव कर रहा होता है तो एट दैट टाइम द स्पर्म इज डिमांडिंग द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दैट माइटोकॉन्ड्रियल रिंग टू द स्पर्म। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द साइट ऑफ हीम सिंथेसिस। आपने जो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पढ़े, हीमोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन, उसमें जो पिगमेंट होता है दैट इज हीम। हीम इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन and origin, biogenesis, everything regarding the mitochondria. So I think I made it clear to you all ki what is the structure, what is the nature of the mitochondria, what is the function of mitochondria. So till the time आज के लिए जो lecture था that is over now. So thanks for being with me for the day. Thank you.